apply that properties in our sums. That is our exercise number 7.11. So let's start with first property. First property of integration. That is, if you are given integration of f of x dx from a to b, integration of a to b f of x dx, then we can change the variable. है That means here the integration is with respect to x. So we can change the variable of integration, that is f of t dt, then both will be equal. How? For example, consider integration of a to b sin x dx. So for this integration, if we are taking x equal to t, then we can replace dx equal to dt. Then our integration will change to a to b sin t dt. Done. So here x, variable x is replaced with variable t. So you can change the variable of integration. That is the property number 1. Clear? है ना, x की जगह पर आप t लिख सकते हो, सेम आंसर आएगा. Property number 2, integration of f of x dx from a to b, that will be equal to. Now second property is about changing the limits. This is lower limit of integration, this is upper limit of integration. So if we interchange the limits, that means lower limit to upper limit and upper limit to lower limit, that means b to a, then sign of integration will be changed. That means here the sign of integration is plus, so that plus sign is changed into the minus sign. It's a f of x dx. Done. Changing the limits, upper limit to lower limit and lower limit to upper limit, sign of integration will be changed. है ना, ये कैसे होता है देखो. For example, if we are having integration a to b f of x dx, then the integration of this function f of x is nothing but the capital F of x. Done. And applying the limits b to a, then what is the answer? It's a capital F of b minus capital F of a. This is our answer. Now if we take the minus sign common, it will be minus of f of a minus f of b. What is this? This is the integration of this one, है ना, minus b to a f of x dx, है ना. यहाँ पर कैपिटल f of x इसका इंटीग्रेशन आएगा और ये वैल्यू पुट करो तो सेम आंसर आएगा. क्लियर? So that means if we change the limits, that means interchange the limits, upper limit to lower limit and lower limit to upper limit, sign of integration will be changed. That is the property number 2. Then next property, third property. Third property is, if we are given integration of f of x dx from a to b, then here we can break the limits. Matlab, you can integrate this function from a to c, and then you can integrate the function from c to b f of x dx. है ना, इसका क्या मतलब हुआ? For example, we have studied definite integration. Definite integration is nothing but the area under the curve. For example, we are given one curve like this. This is given curve. Here lower limit is a, here upper limit is b, and this is our curve y equal to f of x. And consider one point c in the range of a to b. So what is the meaning of this integration a to c f of x? That is nothing but the area under the curve from a to c. This one. And then we are adding this part, that means area under the curve of f of x from b to c. So that is our b to c. So sum of these two integration is nothing but the area under the curve from a to b. So here you can break the limits from a to c and c to b. Done.
ए टू बी था उसको हमने कन्वर्ट किया ए टू सी एंड देन सी टू बी. Fourth, that is important one, that will be used in maximum sums. For example, a to b f of x dx is there, so that can be replaced with integration a to b f of, you have to add this a plus b and then you have to subtract this x. So it's a plus b minus x dx, that will be equal, है ना? Integration of f of x dx from a to b. So you can replace your variable x with lower limit plus upper limit minus variable. Done. So for that, one example is there. So to understand this property, let us now consider one example. इसको कैसे अप्लाई किया देखो. Suppose we have to integrate 1 upon 1 plus square root of 10x dx from pi by 6 to pi by 3. Then how to integrate this 1 plus square root of 10x? No simple method is available. So इसको कैसे करेंगे? By using property number 4, है ना? पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, है ना? फर्स्ट सिंप्लीफिकेशन इज कन्वर्टिंग दिस 10x एज ए, है ना? 10x को ऐसे लिखेंगे sin x by cos x, sin x by cos x, और रूट है तो लिखेंगे रूट 10x इक्वल टू रूट sin x by रूट cos x. तो यहाँ पर होगा 1 प्लस रूट sin x by रूट cos x. रूट cos x एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रूट cos x ऊपर चला जाएगा, है ना? तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ दैट इज इक्वल टू पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 रूट cos x, है ना? ये एलसीएम आया था वो ऊपर चला गया और यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा रूट cos x प्लस रूट sin x dx. ये समझ में आया आर्यन? आर्यन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? કેટલા સ્ટુડન્ટ છે ભાઈ? ओके वेरी गुड. ये समझ में आया? मैक्सिमम टीचर्स अच्छे आज. वेरी गुड. हम सब टीचर्स को मैच, हाँ टीचर्स को सबको मैच आ जाएगा. स्टूडेंट को पढ़ना हो तो पढ़ो. ये समझ में आ गया? ओके चलो. So now we are applying our property. We have to replace this x with lower limit plus upper limit minus x. So here lower limit plus upper limit minus x क्या होगा? देखो रफ में करता हूँ. पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3, है ना? पाई बाय 6 पाई बाय 3 में से x सब्ट्रैक्ट करना है. तो पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 क्या होगा? पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 विल बी 6 एलसीएम आएगा. So it's a pi plus 2 pi, 3 pi by 6, that is equal to pi by 2. तो pi by 6 plus pi by 3 is pi by 2, और उसमें से आपको क्या करना है? x सब्ट्रैक्ट करना है. तो आपको x को रिप्लेस करना होगा pi by 2 minus x से. क्लियर? pi by 6 plus pi by 3 minus x करना है ना. So pi by 3 plus pi by 6 is pi by 2 minus x. तो x को रिप्लेस करना है pi by 2 minus x से. So this is equal to, है ना? This is our I. Now this is our again I. So it's a integration pi by 6 pi by 3 म्यूट करो cos pi by 2 minus x upon cos pi by 2 minus x sin pi by 2 minus x dx. So pi by 2 minus x will be sin x. So now our I will be pi by 6 pi by 3. So square root of cos pi by 2 minus x is nothing but the square root of sin x, upon square root of sin x plus square root of cos x dx. डन. तो ये जो I हमारा था क्या था?
दिस वन, इसको रिप्लेस किया दूसरे आई से by using our property. So this is our I, this is our I. Now we have to add this both the I's. है ना, सपोज इसको रिजल्ट वन बोले, इसको रिजल्ट टू बोले. नाउ एडिंग रिजल्ट वन एंड रिजल्ट टू. ये माइक किसी का अनम्यूट है वो म्यूट कर दो, और जैसे इसका नाम लिखो आप, ये कौन है. एडिंग रिजल्ट वन एंड रिजल्ट टू. आई इक्वल टू वन और टू को ऐड करेंगे तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, एंड डिनोमिनेटर में रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स. सो टू आई इक्वल टू लिमिट्स पाई बाय 6 to pi by 3. It's a root cos x plus root sin x upon root cos x plus root sin x dx. तो आप देखो इंटीग्रेशन हो गया इजीली, है ना. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आर इक्वल, तो इजीली कट हो जाएगा. हाँ बोलो, हाँ बोलो. जय सर का ही चालू है, क्या करे इनका, किया उन्होंने म्यूट. जय सर माइक म्यूट करो अपना. हाँ माइक म्यूट रखो सर, आप माइक म्यूट रखो. ना ना, मिसअंडरस्टैंडिंग, म्यूट रखो. So integration of 1 is x. So pi by 6 to pi by 3. Done. Now put the value of x. So 2I equal to pi by 3 minus pi by 6. So what is pi by 3 minus pi by 6? It's a pi by, है ना, 6 आएगा, लेकिन कैसे आएगा, ये 6 एलसीएम 2 पाई माइनस पाई, so it's a pi by 6. So it's a pi by 6. So I equal to 2 डिवीजन में जाएगा, so pi by 12 is the answer. क्लियर हाउ टू अप्लाई प्रॉपर्टी नंबर 4. इसके बेस पर बहुत सारे सम्स करेंगे तो और समझ में आएगा. डाउट इसमें किसी को कोई, स्टूडेंट्स. प्रॉपर्टी नंबर 4. हाँ ओके ओके चलो. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5. जिसको प्रॉपर्टी नंबर 4 में समझ में आ गया होगा उसको ये प्रॉपर्टी नंबर 5 भी इजीली समझ में आ जाएगी. ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसा ही है, सेम प्रॉपर्टी, है ना. वहां पर लिमिट थी a टू b और यहाँ पर लिमिट है 0 टू a, है ना. a टू b लिमिट थी, यहाँ पर 0 टू a लिमिट है. इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम 0 टू a. सो दिस इज इक्वल टू, वहां पर क्या कर रहे थे, a प्लस बी का एडिशन और इसमें से x सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो यहाँ पर भी आपको सेम करना है. 0 प्लस a का एडिशन क्या होगा, a, और a में से x सब्ट्रैक्ट करना है. सो दैट इज इक्वल टू 0 टू a f, x को किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों के एडिशन में से, तो एडिशन होगा a माइनस एक्स डी एक्स. सो सेम एज प्रॉपर्टी नंबर 4, है ना. एक प्रॉपर्टी का एक अलग फॉर्म है. सो प्रॉपर्टी नंबर 4 एंड 5 बोथ आर सेम. डन. सो क्वेश्चन प्रॉपर्टी नंबर 6. प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट. देखो इसमें क्या करना है. सपोज वी आर गिवन इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx 0 to 2a. So this can be written as integration of f of x dx, है ना. 0 to 2 है तो उसको हाफ कर देना है, तो 0 to a f of x dx आएगा प्लस 0 to a, और here you have to subtract x from 2a. डन. दिस इज योर प्रॉपर्टी नंबर 6. और उसका एक सेम फॉर्म प्रॉपर्टी नंबर 7, इसका ही एक फॉर्म है ना. इसके बेस पर अप्लाइंग टू डिफरेंट कंडीशंस फॉर दिस f of 2a minus x. So property number 7, it's the integration of f of x dx 0 to 2a, that is equal to
ट्वाइस ऑफ, इसका डबल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 0 to a f of x dx when this one f of 2a minus x equal to, if f of 2a minus x equal to कितना होगा, ये इक्वल डबल हो गया, कब होगा, f of 2a minus x will be equal to f of x, है ना, ये 2a minus x अगेन f of x हो जाएगा, तो दोनों को एडिशन हो गए, ट्वाइस ऑफ 0 to f of x हो जाएगा, डन. So this is case 1 and this property equal to, that means 0 to 2a f of x dx इक्वल टू 0, ये 0 हो जाएगा इफ, कब, अगर f of 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स होगा, है ना, तो ये एफ ऑफ एक्स या माइनस एफ ऑफ एक्स दोनों इंटीग्रेशन प्लस माइनस 0, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 0. दैट इज योर प्रॉपर्टी नंबर 7. डन. एक बार लिख के देख लेना तो थोड़ा इजी हो जाएगा याद रखने के लिए. नाउ 8 प्रॉपर्टी, अगेन ये मैक्सिमम सम में यूज होगी, माइनस 8 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, है ना, लिमिट देखो माइनस 8 टू एफ ऑफ एक्स है, तो ये लिमिट को हम डबल कर सकते हैं, ट्वाइस ऑफ, और इसको 0 टू ए कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स डी एक्स. कब ऐसा हो सकता है, व्हेन और गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन, इफ एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन, इवन फंक्शन के लिए एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगा, है ना, एफ ऑफ एक्स कैसा फंक्शन होगा, इवन फंक्शन. So if minus 8 to a f of x dx is given and f of x is even function, then we can multiply 2 and convert this limit from minus a to a into 0 to a. डबल करके आप इसको 0 to a के लिमिट में आप कन्वर्ट कर सकते हो, कब, जब हमारा f of x इवन फंक्शन होगा, और जब ऑड फंक्शन होगा तो क्या करेंगे, तो इसको डबल नहीं करेंगे, उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन माइनस a to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, ये हम कर देंगे 0, कब, इफ और फंक्शन एफ ऑफ माइनस एक्स ऑड फंक्शन होगा, तो ऑड फंक्शन के लिए होगा माइनस एफ ऑफ एक्स, दैट मीन्स आवर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन, है ना. जब हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स ऑड फंक्शन होगा तो ऐसी कोई लिमिट आएगी माइनस 8 टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो उसको हम कर देंगे 0. डन. तो ऐसे प्रॉपर्टी कैसे करना है, पहले तो आप 1-2 बार लिख के प्रैक्टिस करो, उसके बाद जितनी बार आप सम्स में अप्लाई करेंगे तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रह जाएगी. क्लियर. सो दिस आर द टोटल 8 प्रॉपर्टीज that we have to use in our exercise 7.11. Then question will be like this, using the property of definite integrals, है ना, that means you have to use total 8 property, either of the 8 property to find the integration of given questions. प्रॉपर्टी का यूज करके आपको इंटीग्रेशन निकालना है, ये टोटल 8 प्रॉपर्टी है, वो आपको याद रखनी होगी. डन. ये प्रॉपर्टी में किसी को कोई डाउट, यस, नो, नो, नो डाउट, वेरी गुड. कौन स्तवन आया है, स्तवन, नहीं आया है, वेरी गुड. नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 7.11. एक्सरसाइज नंबर 7.11. यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिफाइंड इंटीग्रल. देखो क्या करना है, इंटीग्रेशन तो करते हैं लेकिन प्रॉपर्टी का यूज करके, डायरेक्ट आपको वो सब फॉर्मूला अप्लाई करके इंटीग्रेशन नहीं निकालना है. सो द इंस्ट्रक्शन इज फाइंड द इंटीग्रेशन बाय यूजिंग द properties of integrals. You have to find the integration by using the properties, है ना. तो देखो 1 by 1 सम्स कर दे, प्रॉपर्टी आपको इजीली समझ में आ जाएगी. क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट, here you have to find the integration 0 to pi by 2, है ना, लिमिट्स इज 0 to pi by 2 cos square x dx, cos square x dx. तो यहाँ आपको प्रॉपर्टी यूज करनी है, डायरेक्ट वो सब 1 plus cos 2x by 2 करके वो सब करके नहीं करना है. सो प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी. तो देखो यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ 0 to a f of x dx इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे 0 to a f of
ए माइनस एक्स डी एक्स, कौन सी प्रॉपर्टी है, कोई बताएगा? प्रॉपर्टी नंबर नहीं, वेरी गुड। तो आपको देखना है कि ये प्रॉपर्टी नंबर कौन सी है। डन। सो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी 0 to a f of x dx इक्वल टू 0 to a f of a माइनस एक्स डी एक्स, है ना। x में से जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट का एडिशन करके वो जो नंबर आएगा उसको, उसमें से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो आप सम्स करेंगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा, है ना। cos square x दिख रहा है मुझे, एक आइडेंटिटी दिख रही है cos square x प्लस sin square x। सो नाउ अप्लाइंग दिस प्रॉपर्टी, this is equal to, according to this property what you have to do, you have to subtract this x from the upper limit. Here upper limit is pi by 2, so this is equal to 0 to pi by 2, है ना। cos square x को मैं लिख सकता हूँ cos x होल स्क्वायर, और cos x, x को सब्ट्रैक्ट करना है ना, किस में से, पाई बाई 2 में से। सो पाई बाई 2 माइनस एक्स, और इसका होल स्क्वायर था dx। डन। अप्लाइंग दिस प्रॉपर्टी, अपर लिमिट में से x को सब्ट्रैक्ट करना है, पाई बाई 2 में से x को सब्ट्रैक्ट करना है। सो cos पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होगा, sin x, और उसका स्क्वायर sin स्क्वायर x। सो हियर आई एम गेटिंग 0 to pi by 2 sin स्क्वायर x dx। डन। जो भी क्वेश्चन दिया है उसको हम बोलेंगे रिजल्ट नंबर 1, और जो भी हम प्रॉपर्टी यूज करके रिजल्ट डिराइव करते हैं उसको बोलेंगे रिजल्ट नंबर 2। दिस इज अगेन अवर आई, है ना। ये भी हमारा आई है और ये भी हमारा आई ही है, लेकिन प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के बाद उसका जो लुक है वो चेंज हो गया। सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग, नाउ एडिंग रिजल्ट 1 एंड रिजल्ट 2। ये जो रिजल्ट 1 था और ये रिजल्ट 2 डिराइव किया, दोनों को ऐड करेंगे। बोलो क्या होगा ऐड करने से, ये हमारा आई है और ये भी हमारा आई है, तो दोनों साइड आई प्लस आई करेंगे तो होगा 2i इक्वल टू, रिजल्ट 1 में जो था वो था 0 to pi by 2 cos square x dx, प्लस रिजल्ट 2 में हमारे पास आया 0 to pi by 2 sin square x dx, है ना। लिमिट कॉमन है तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 2i इक्वल टू 0 to pi by 2 cos square x plus sin square x dx। So now we can say that this cos square x plus sin square x is 1. So this is equal to integration 0 to pi by 2 1 dx. So integration of 1 is x. So 2i equal to integration of this 1 is x, and applying limit 0 to pi by 2 and put the value x equal to pi by 2 and x equal to 0. So pi by 2 minus 0, it's a pi by 2. So 2i equal to pi by 2, and therefore our integration I answer is pi by 2, multiply this with 2, so pi by 4 is the answer. So this is how you can apply your properties to find the integration of given function. Done. Varshita, Riddhi, सेजल, सिरजा, क्षमा, कुशल, आर्यन, सिद्धांशु, चलो वेरी गुड। समझ में आया? ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2। हियर वी हैव टू अप्लाई द प्रॉपर्टी टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन। तो कैसे ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, देखो हियर गिवन आई इज 0 to pi by 2, 0 to pi by 2 square root of sin x, square root of sin x upon square root of sin x plus square root of cos x dx। तो क्या करते हैं, जो भी हमें इंटीग्रेशन दिया है उसको हम रिजल्ट 1 बोलेंगे। डन।
नाउ प्रॉपर्टी 0 टू पाई बाई 2 है, तो प्रॉपर्टी कौन सी होगी? ये प्रॉपर्टी हमारे लिए इजी होगी। देखो ऐसा कैसे समझ में आएगा? देखो यहाँ पर देखो डिनोमीटर में साइन एक्स कॉस एक्स है, पाई बाई 2 माइनस एक्स करेंगे ना तो साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा और कॉस एक्स का साइन एक्स हो जाएगा। दैट मीन्स रिजल्ट 2 में डिनोमीटर तो सेम आएगा और न्यूमरेटर में साइन एक्स का कोस एक्स हो जाएगा और उसको ऐड करेंगे, है ना, तो ये पहले वाले सम की तरह सब कट होके 1 हो जाएगा, है ना। तो आपको ऐसे थोड़ा दिमाग लगा के सोचना है एडवांस में। सो प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये आपने बताया ना कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी नंबर 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, वी आर यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। डन? तो क्या होगा? सो नाउ और I will be 0 to pi by 2 रूट साइन एक्स। सो रूट साइन सब्ट्रैक्ट करेंगे x को पाई बाई 2 में से, सो पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स, सो x को सब्ट्रैक्ट करेंगे पाई बाई 2 में से, प्लस रूट कॉस एक्स, x को सब्ट्रैक्ट करेंगे पाई बाई 2 में से dx। सो अवर I will be 0 to pi by 2 sin pi by 2 minus x, it's a cos x, so it's a root cos x upon this sin pi by 2 minus x will be cos x and this cos will be sin x. So this is root cos x plus root sin x dx. Say this one as a result number 2. Now adding result number 1 and result number 2. ये result number 1 ये result number 2, i को i के साथ ऐड करो तो होगा 2i, है ना। और यहाँ पर लिमिट्स 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2 और यहाँ पर एलसीएम भी सेम है, तो एलसीएम इसको ले लेंगे रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, और डिनोमीटर में होगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, so it's a dx. Numerator denominator equal, so it will be cut, so it's a 2i equal to 0 to pi by 2, this will be cut, so 1 dx. So integration of 1 with respect to x is x and limits are 0 to pi by 2 and that is equal to pi by 2. So that is 2i equal to pi by 2. 2i equal to pi by 2 and therefore our integration I is pi by 4 is the answer. अभी समझ में आया कुछ? अभी कुछ समझ में आया होगा, अभी भी कुछ समझ में नहीं आता है तो लेट्स ट्राई क्वेश्चन नंबर 3, सेम प्रॉपर्टी। So question number 3. Question number 3. Here integration I is 0 to pi by 2, 0 to pi by 2 sin raised to 3 by 2x। इसके आगे वाले सम में साइन का 1 by 2 पावर था, है ना, रूट एक्स था, और यहाँ पर 3 by 2 पावर है और कोई चेंज नहीं है, सेम मेथड से होगा, फिर भी मैं आपको करवा रहा हूँ। 3 by 2x प्लस cos 3 by 2x dx। बोलो है कोई डिफरेंस की नहीं है? है ना, रूट साइन एक्स था उसकी जगह पर रूट साइन एक्स की पावर 1 by 2 थी और यहाँ पर 3 by 2 है। सेम प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? अभी भी आप लोगों ने बताया नहीं कि कौन से नंबर की प्रॉपर्टी है। 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, है ना आर्यन? ये प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई, कौन से नंबर की?
प्रॉपर्टी नंबर आपको बताना है. So using this property 0 to a f of x dx equal to 0 to a f of a minus x dx. तो देखो I equal to 0 to pi by 2. Here sin x whole raised to 3 by 2, or subtracting this x from pi by 2. So we can write sin pi by 2 minus x power is 3 by 2 upon this one sin pi by 2 minus x power is 3 by 2 plus cos pi by 2 minus x and power is 3 by 2 dx. डन. पाई बाई 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन का कॉस होगा और कॉस का साइन. सो और इंटीग्रेशन आई इज 0 to pi by 2 sin pi by 2 minus x is cos x raised to 3 by 2 is nothing but the cos raised to 3 by 2x upon this will be cos raised to 3 by 2x plus this will be sin raised to 3 by 2x dx. Say this one as a result number 2. Now adding result 1 and result 2. This is our result 1, this is our result 2. So now adding result 1 and result 2. So I plus I will be 2i. ना लेफ्ट हैंड साइड का एडिशन I plus I 2i और राइट हैंड साइड पर क्या होगा. लिमिट्स आर 0 to pi by 2. So it's a 0 to pi by 2. एलसीएम सेम है. So it's a sin raised to 3 by 2. Sin raised to 3 by 2x plus cos raised to 3 by 2x और न्यूमरेटर में आएगा sin raised to 3 by 2x plus cos raised to 3 by 2x. It's a sin raised to 3 by 2x plus cos raised to 3 by 2x with respect to dx. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इक्वल दिख रहे हैं है ना, क्योंकि इक्वल है तो कट हो जाएगा. सो 2i इक्वल टू 0 to pi by 2 और ये हो गया 1 dx. So integration of 1 is x, applying limit 0 to pi by 2, simplify it. So pi by 2 minus 0, so it's a pi by 2. So we can write our I is 2 division में जाएगा. So it's a pi by 4. So answer is pi by 4. है ना. अभी भी समझ में नहीं आए तो नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे. है ना, नेक्स्ट ईयर रिपीट करेंगे तब पढ़ लेंगे. फोर्थ, लास्ट चांस टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टी. है ना, 3 by 2 पावर था, अभी 5 पावर है. सो इंटीग्रेशन आई इज 0 to pi by 2, 0 to pi by 2 cos raised to 5x upon sin raised to 5x plus cos raised to 5x dx. Say result number 1. Again we are using the same property. प्रॉपर्टी नंबर क्या है वो अभी भी आप लोगों ने नहीं बताया है. सो इट्स 0 to a f of x dx equal to 0 to a f of a minus x dx. है ना, प्रॉपर्टी नंबर क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी नंबर है, ये हम यूज करेंगे. है ना, 0 to a f of x dx. तो क्या करना है, ये जो x है उसको अपर लिमिट में से सब्ट्रैक्ट करना है बस. तो यहाँ पर x है तो होगा cos पाई बाई 2 माइनस एक्स, और यहाँ पर साइन और cos है तो साइन का रिप्लेसमेंट cos से होगा, cos का साइन क्या होगा, डिनोमिनेटर सेम आएगा. रिजल्ट को ऐड करेंगे तो पाई बाई 4 आंसर आएगा. ठीक है, फिर भी हम करेंगे क्योंकि आप लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया है ऐसा लग रहा है. तो इंटीग्रेशन आई इक्वल टू 0 to pi by 2, 0 to pi by 2 cos x को सब्ट्रैक्ट करेंगे पाई बाई 2 में से क्योंकि अपर लिमिट पाई बाई 2 है. सो इट्स पाई बाई 2 माइनस एक्स. cos रेस टू 5 इज देयर तो cos का 5 पावर हम ऐसे लिख रहे हैं अभी, cos रेस टू 5 डिवाइड बाय sin रेस टू 5x. सो इट्स sin पाई बाई 2 माइनस x whose power is 5 plus cos pi by 2
minus x whose power is 5. डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, है ना. इंटीग्रेशन I इक्वल टू क्या होगा, 0 to पाई बाई 2. cos पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होगा, cos का रिप्लेसमेंट साइन से, सो साइन रेज टू 5x, सो इट्स साइन रेज टू 5x, है ना. देखो cos था तो पता ही था कि साइन ही आने वाला है, और डिनोमीटर में क्या होगा, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो इससे cos रेज टू 5x, cos रेज टू 5x प्लस cos पाई बाई 2 माइनस एक्स का क्या होगा, साइन x पावर 5, तो इट्स साइन रेज टू 5x dx, है ना. इसको बोलेंगे रिजल्ट नंबर 2. सेम क्या करना है अभी, एडिंग रिजल्ट 1 एंड रिजल्ट 2. सो नाउ एडिंग रिजल्ट 1 एंड रिजल्ट 2, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2i इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 साइन रेज टू 5x प्लस cos रेज टू 5x साइन रेज टू 5x प्लस cos रेज टू 5x dx कट हो जाएगा, so it's a 2i equal to 0 to pi by 2 1 dx, integration of 1 is x, pi by 2 0, so same answer,